Hello everyone, welcome to my channel. I am Shweta, your English teacher, and today we are going to read chapter Coorg, which is the second part of Glimpses of India, chapter number 3 from the book First Flight of class 10. So let's get started. Okay, Coorg by Lokesh Abrol. So first of all, let's have an introduction of the author. Lokesh Abrol is a notable doctor by profession and a passionate writer and travel enthusiast at heart. His literary works often reveal a deep appreciation for nature, heritage, and unique cultural landscapes. In this chapter, he combines detailed observation with lyric prose to bring to life the vibrant traditions of the Kodagu people and the breathtaking natural beauty of the region often called the Scotland of India. What is called the Scotland of India? Coorg itself is called the Scotland of India, or the heaven drifted from the kingdom of God. So Lokesh Abrol, जो by profession doctor और by heart he is a traveler and a writer. उनके जितने लिटरेरी वर्क्स हैं वो किस बारे में हैं? नेचर, हेरिटेज एंड कल्चर के बारे में है. फाइन, तो चलिए लेट्स हैव एन इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर ऑल्सो. Coorg serves as an enchanting and detailed introduction to the Kodagu district in Karnataka, famously described as the Scotland of India and a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. Coorg क्या है? एक कोडागू डिस्ट्रिक्ट का बहुत प्यारा सा डिस्क्रिप्शन है जो कर्नाटका में है. फेमसली डिस्क्राइब्ड एज द स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया. इसको किस नाम से जाना जाता है? स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, या हम इसको बोलते हैं अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड. It vividly portrays a land defined by its misty evergreen landscape, sprawling coffee plantation, and exotic spice gardens that perfume the air. As you know, glimpses of India. What do you mean by glimpses of India? India की अलग अलग जगह की झलक दिखा रहा है हमें glimpses of India. तो हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था कल? बेकर फ्रॉम गोवा, जिसने हमें गोवन ट्रेडिशन के बारे में बताया था, जिसने हमें बेकर्स के बारे में बताया था. नाउ दिस चैप्टर इज अबाउट कूर्ग, द ब्यूटी ऑफ इंडिया. इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं. यहाँ पर क्या है? कॉफी प्लांटेशंस, ठीक है, स्पाइस गार्डन्स. The chapter offers a deep dive into the unique identity and vibrant heritage of the Kodagu community, exploring their origins, their fierce martial traditions, and their legendary hospitality. Beyond the people, the text paints a rich picture of the region's diverse ecosystem, highlighting the winding Kaveri River, the abundant wildlife including elephants, langurs, and kingfishers, and the panoramic views available from the Brahmagiri hills. Through this narrative, Coorg is revealed and not just as a coffee producing hub, but as a premier natural and cultural destination for any traveler seeking adventure or tranquility. Coorg की विशेषता सिर्फ इतनी नहीं है कि वहां पर हरियाली है या वहां पर कॉफी प्लांटेशन होता है. किसी भी ट्रैवलर के लिए इट इज रियली हेवन, जहां पर आप एडवेंचर भी कर सकते हो, आपको शांति भी मिलेगी, सुकून भी मिलेगा, ग्रीनरी भी मिलेगी और साथ में कॉफी भी मिलेगी. फाइन, चलिए चैप्टर की समरी पढ़ लेते हैं. Coorg is an engaging prose piece highlighting the unique culture, natural beauty, and martial heritage of the Kodagu district in Karnataka. कर्नाटका में कोडागू डिस्ट्रिक्ट में है Coorg. Fine. The chapter vividly describes the region often called the Scotland of India, portraying it as a mist-covered land of evergreen rainforest, spices, and
coffee plantations. The central focus is on the Kodagus, the fiercely independent inhabitants of Coorg. The author explores their possible Greek or Arabic origins and highlights their distinct traditions, martial powers, and legendary hospitality. It details their traditional attire, which is kupia, and notes that Kodagu regiment is one of the most decorated in Indian army, with General Cariappa being a famous example. तो कूर्ग के बारे में क्या स्पेशलिटी बताई है वहां की कि either they belong to Greek or Arabic origin, फाइन, और क्या है वहां का मार्शल पावर्स, ओके, उनकी हॉस्पिटैलिटी, दे आर फेमस फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी, फाइन, और उनका जो अटायर है वो क्या है, कुपिया. देखिए हमने इससे पहले चैप्टर पढ़ा था बेकर फ्रॉम गोवा, जो उनका ट्रेडिशनल अटायर था, किसका, पेडर्स का, दैट वाज कॉल्ड कबई. नाउ हियर इफ आई टॉक अबाउट कूर्ग, तो यहाँ के लोगों का ट्रेडिशनल अटायर क्या है, कुपिया. यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना बेटा. एंड नोट्स दैट द कोडागु रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी. किसकी बात हो रही है यहाँ पे, स्पेशली एग्जाम्पल किसका दिया गया है, जनरल कैरियप्पा. ये कौन थे, चैप्टर में पढ़ेंगे. द नैरेटिव ऑल्सो डिटेल्स द ज्योग्राफिकल वंडर्स ऑफ कुर्ग, एक्सप्लेनिंग हाउ द कावेरी रिवर फाइंड्स इट्स सोर्स इन द हिल्स. कावेरी कहाँ से आ रही है वो हम देखेंगे. इट पेंट्स अ रिच पिक्चर ऑफ द लोकल इकोसिस्टम, मेंशनिंग वाइल्ड लाइफ लाइक एलिफेंट्स, स्क्विरल्स एंड लंगूर्स दैट कॉल दीज फॉरेस्ट होम. Finally, it emphasizes Coorg as a top destination for adventure tourism, offering activities such as rafting, rock climbing, scenic treks through the Brahmgiri hills. तो adventurous people के लिए it is really very good. जो जाना चाहते हैं जाओ घूम के आओ भाई, ठीक है. Okay, now let's get started with the chapter. Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. मैसूर और मैंगलोर के बीच में एक बहुत प्यारा सा क्या है, एक जगह है जिसको हम कहते हैं पीस ऑफ हेवन, जो क्या है, जो क्या हो गया है, किंगडम ऑफ गॉड, भगवान का जो किंगडम है उससे गलती से ये अलग हो गया है. और कहाँ आ गया है, मैसूर और मैंगलोर के बीच में. This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men. ठीक है, कौन रहता है वहां पर, martial men, beautiful women and wild creatures. ठीक है. Coorg or Kodagu, the smallest district of Karnataka. One more speciality, Coorg क्या है, कर्नाटका का smallest district है. Is home to evergreen rainforest, spices and coffee plantation. जो कूर्ग है वहाँ की स्पेशलिटी क्या है कि क्या है, वहाँ पर एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है, स्पाइसेस हैं और कॉफी प्लांटेशंस हैं. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट. जो वहां पर के जो फॉरेस्ट हैं, दैट दोज आर लाइक दोज एवरग्रीन फॉरेस्ट, उन्होंने उस जगह का 30% एरिया कवर किया है. फाइन. During the monsoons, it pours enough to keep many visitors away. Monsoon में वहाँ visitors नहीं जाते हैं. क्यों नहीं जाते हैं? The season of joy commences from September and continues till March. Like September से March तक वहाँ जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर बीच में आप जाते हैं तो वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है. That's why they says कि मानसून के टाइम पर वहाँ से विजिटर्स दूर रहते हैं. The weather is perfect with some showers thrown in for good measure. The air breathes of invigorating coffee. Coffee estates and colonial bungalows stand tucked under tree canopies in prime corners.
बहुत सुंदर जगह है, वेदर परफेक्ट है वहां पर, ठीक है। हवा में कॉफी की जो खुशबू रहती है, ओके। और जो बंगलोज हैं और जो जो ट्री कैनोपीज है, मतलब अपने आप में बहुत प्यारी जगह है, बहुत सुंदर जगह है। फाइन। The fiercely independent people of Coorg are possibly of Greek or Arabic descent. जो वहाँ के जो लोग हैं वो कहाँ से, either they belong to Greek or Arabic. As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical. These people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites, which are distinct from the Hindu mainstream. तो यहाँ क्या है, एक स्टोरी क्या बताती है हमें कि ये ग्रीक का ओरिजिन हो सकते हैं आइदर और अरेबिक का, ओके। सो एक स्टोरी क्या है, क्या कहती है कि अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी जब वो साउथ की तरफ जा रही थी तो वहां के कुछ लोग थोड़ा इम्प्रैक्टिकल हो गए। उन्होंने क्या किया, जो यहाँ के जो लोकल लोग थे कुर्ग के, उनसे ही उन्होंने शादी कर ली और इसी यहीं के कल्चर को फॉलो कर लिया, ठीक है। उनके कल्चर थोड़ा सा जो हिंदुओं के जो मेन स्ट्रीम जो मेनली जो कल्चर है उनसे थोड़ा सा अलग है उनका कल्चर। द थ्योरी ऑफ अरब origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kodavus, known as kufiya. It resembles the kufiya worn by the Arabs and the Kurds. फाइन। तो एक स्टोरी क्या कहती है, अलेक्जेंडर आर्मी की बात करती है। फिर क्या कहते हैं कि अगर हम बात करें अरब ओरिजिन की, तो ये क्या है, जो ये लॉन्ग ब्लैक कोट पहनते हैं, जो एक एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट के साथ पहना जाता है, इसको कुफिया कहते हैं। और ये उससे रिजेंबल करता है, जो अरब के जो लोग थे वो कुफिया पहनते थे, उससे रिजेंबल करता है। तो यहाँ से ये भी लगता है कि ये बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं, अरब से बिलोंग करते हैं। Kurgi homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. तो कूर्ग के जो लोग हैं, हॉस्पिटैलिटी उनकी बहुत अच्छी है। आप वहाँ जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से वो लोग ट्रीट करते हैं, ओके। और उनके पास हजारों स्टोरीज हैं अपने एंसेस्टर्स की, अपने सन्स की, अपने फादर्स की, आप लोगों को सुनाने के लिए। द कूर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल कैरियप्पा वाज अ कूर्गी। तो कूर्गी क्या है, मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट मानी जाती है इंडियन आर्मी में। और वहाँ द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल कैरियप्पा, जैसे मैंने अभी समरी में बताया था कि पढ़ेंगे इनके बारे में, कौन थे जनरल कैरियप्पा। द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, वो भी क्या थे, एक कुर्गी थे। Even now, Kodavus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. Okay? So आज के टाइम में भी सिर्फ एक ये ही ऐसी जगह है जहां पर firearms without any license रखा जा सकता है। The river Kaveri obtains its water from the hills and forest of Coorg. कावेरी क्या है, अपना पानी कहाँ से, कावेरी में पानी कहाँ से आता है, from the hills and forest of Coorg. Mahasir, a large freshwater fish abound in these waters. Kingfishers dive for their catch, while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mahouts. Means वहाँ पर जब हम animals की भी बात करते हैं, so they are enjoying the nature. वहाँ पर ऐसा नहीं है कि उनको बाउंड करके रखा हुआ है, ठीक है। किंगफिशर्स हैं, स्क्विरल्स हैं, लंगूर हैं, ओके। एंड सच में जब वो लोग अपनी अपनी एक्टिविटीज करते हैं तो बहुत प्यारा सिनेरियो बनता है। द मोस्ट laid back individuals become converts to the life of high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking. Numerous walking trails in this region are a favorite with
ट्रैकर्स। ओके, तो वहाँ पर लोग जाके जो एडवेंचरस पीपल होते हैं वहाँ पर जाके बहुत एंजॉय करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम बात करें कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग, ओके, बहुत सारे अलग अलग एडवेंचर हैं वहाँ पर, और लोग क्या है ट्रैक करना भी बहुत पसंद करते हैं। फाइन। Birds, bees and butterflies are there to give you company। वहाँ पर जैसे birds आजकल शहरों में तो बहुत कम नज़र आने लगी हैं, तो वहाँ पर there is a huge variety of birds, bees, butterflies जो आपको company देते हैं। Macacus, Malabar squirrels, langurs and slender lories keep a watchful eye from the tree canopy. I do, however, prefer to step aside for a wild elephant। तो वहाँ पर मैकाकस, मालाबार स्क्विरल्स, लंगूर और जो स्लेंडर हैं वो आप पर नजर रख रहे होते हैं कहीं ना कहीं ट्री कैनोपी से, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या कहूँगा कि वाइल्ड एनिमल से थोड़ा दूर रहना ही प्रेफर करूँगा। द क्लाइंब to the Brahmagiri hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Coorg। जब ब्रह्मगिरी हिल से आप एक व्यू लेते हैं तो बहुत ही प्यारा एक पैनोरेमिक जो है सीन आपको मिल जाता है। A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of Nisargandhama, running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearby Bailakupi is a bonus। ठीक है, तो वहां पर 64 एकड़ आइलैंड जो निसारगंधमा है वो 64 एकड़ में जो फैला हुआ है, और बात करें कि बुद्धिस्ट मॉन्क भी हैं वहां पर, बहुत ज्यादा वहां पर मिलेंगे। ठीक है, कहाँ पर, जो वहीं पर एक जगह है बाइलकुपी, सो सॉरी, और जिसको देखना मीन्स इट्स लाइक अ बोनस फॉर यू। नेचर तो है ही, ओके, और वहाँ की जो एनिमल्स हैं वो भी हैं, और एडवेंचर्स भी हैं, और साथ में जब आप जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं उनको देखते हैं तो सच में इट इज लाइक अ बोनस। द मॉन्क्स इन रेड, ओकर एंड येलो रोब्स आर amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India। तो वहाँ पर जो मॉन्क्स हैं वो रेड में, ऑकर और येलो रोब्स में जब आपको नजर आते हैं तो वो वहाँ मिलने वाले बहुत सारे सरप्राइजेस में से एक वो भी है। जो लोग वहाँ पर इंडिया का हार्ट एंड सोल ढूंढने जाते हैं उनको वहाँ पर इस तरह के और भी सरप्राइजेस मिल जाते हैं राइट हियर इन कुर्ग। कहाँ पर? सिर्फ और सिर्फ कुर्ग में। सो दिस वाज द चैप्टर। आई होप सभी को समझ आया हो। हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।